देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, दिख रहा है स्क्रीन पर। Who यस सर, दिख रहा है। demised kids work as impertables traveling advocacy। किसने ये कह दिया था कि ये तो बेकार है इनके वर्क किड्स के? जॉन विल्सन क्रूकर। जॉन विल्सन क्रोकर। जॉन विल्सन क्रूकर, ये थे कौन जॉन विल्सन क्रूकर? ये क्या नाम है उसका, जो मैगजीन थी सर, एडिनबर्ग रिव्यू, उसके ये वो थे एडिटर। उन्होंने क्रिटिसाइज किया था किड्स को एंडीमियन वर्क के लिए। इंडिमियन वर्क के लिए। जी जस्ट वेट। दूसरा क्वेश्चन, which of the following critics advised kids to return to his work as a apothecary? कहा था कि मेडिकल का जो प्रोफेशन था वो उसी में वापस जाओ। जॉन गिब्सन जॉन गिब्सन लॉकहार्ट। ब्लैकहार्ट। हाँ, ये कौन थे? ये ब्लैकवुड के थे ना? ब्लैकवुड के एडिटर थे सर ये, जॉन गिब्सन लॉकहार्ट। Keats poetry gained popularity during which century? 19th century। Which group of artists was influenced by Keats' work? Pre-Raphaelite Brotherhood that was Pre-Raphaelite founded in Ode 18. on Gratian are focused on the relationship between beauty and what? नेचर। Truth। Truth. Truth आएगा सर, truth। And truth. Keats was part of which generation of romantic poets? Second generation आएगा। Second generation. Ode on Grecian urn. What does the urn symbolize? Eternal beauty आएगा। Eternal beauty. Eternal beauty. B option. La Belle Dame Sans Mercy centered around Destructive what power concept? of love। Destructive power of love आएगा। Destructive power of love. Ode on a Grecian urn. Key Beauty lines. is truth, truth is beauty। B option will be correct होगा। B option. Keats' vivid description in his poetry appeal to which of the following? Sensory experience आएगा। Sensory experience. बहुत सही। What theme is central in Keats' Ode to a Nightingale? Transience and mortality आएगा। B option will be correct। जी, B option is correct. Ode on Grecian urn contrast the central eternal nature of Fleeting of art. nature of love। fleeting nature of life आएगा। B option will be। B option. यस। What classical allusion is central to Keats' poem Endymion? The myth of Endymion and the moon goddess। B option will be correct होगा। बहुत सही, B option. What concept did Keats introduce which emphasized embarrassing uncertainties? Negative capability 1817। B option will be correct होगा। बहुत सही. In which poem does Keats explore the idea of embarrassing melancholy as a part of human experience? Ode on melancholy। B option will be correct Ode होगा। on melancholy. Keats' poetry often reflect a deep sense of what emotions? मेलंकरी। Melancholy. Melancholy हो। Which poet was part of the first generation of romantics and influenced Keats? विलियम वर्dsworth हो। William Wordsworth. What is the famous quote from Ode to a Nightingale? ए ऑप्शन होगा, हे अमर पक्षी तेरा जन्म मरने के लिए नहीं हुआ। Immortal birds. A option. Immortal Thou wast not born for death. Immortal birds. Keats was heavily influenced by which type of literature?
क्लासिकल लिटरेचर एंड ग्रीक मैथोलॉजी, ए ऑप्शन विल बी करेक्ट होगा। बहुत सही। द राइम ऑफ द एंसेंट मरीनर बाय व्हिच कंटेम्परेरी राइटर? Always 1798, it is an example of literary ballad. What does Keats' concept of negative capability? Embarrassing mystery and uncertainty, B option will be Uncertainty. correct. Which poem by Keats features the line, "She dwelt with beauty, beauty that must die"? Ode on Melancholy. Ode on Melancholy. What is the main theme of La Belle Dame sans Mercy? Dangers of idealized love, B option will be correct. B option. Which of Keats' poem address the theme of escapism? Ode to a Nightingale, that is an Ode to a example of Nightingale. Horatian ode. B option will be correct. Which poet was known for creating the Byronic hero? Lord Byron, who Lord was a Byron. revolutionary poet, B option, D option. In which poem does Keats contrast heard melodies, Ode on unheard Agresian. melodies? Ode on Graciana. Heard melodies Ode are on sweet, Grenier. heard are unsweetened. चलिए इस तरह हो गया। देखो जो क्वेश्चन आपने यहाँ पर अटेम्प्ट किए, अभी तक के जितने भी आपने नोट्स पढ़े हो, मार्केट की कोई बुक्स पढ़ी हो, आपको ये क्वेश्चन तो कहीं मिले नहीं होंगे। जो हम कल पढ़ाए अभी उसमें भी आपको ये क्वेश्चन फैक्ट नहीं मिले हैं। इसके बावजूद आपने अटेम्प्ट किया है और वहाँ पर अच्छे खासे नंबर आपने गेन किए हैं। तो इस चीज का परिचायक है कि आपका पर्टिकुलर या इनके जो कॉन्सेप्ट है उस पे आपकी कमांड है। यही चीज हम लोगों को करनी है। हमें क्वेश्चन नहीं फंसाने हैं, हमें जो है पर्टिकुलर टॉपिक पर एक लेबल बनाना है। और जब वो लेबल आपका जी बन जाएगा तो वहां पर लेबल से क्वेश्चन कोई भी बना दे वो। अब एक क्वेश्चन हम बना दें, वो डान ग्रेसियन पे भैया रट लो इसको, इसी यही आएगा, रट के नहीं आया वो डान ग्रेसियन अर्न का एक कॉन्सेप्ट जो है, जो उसकी थ्योरी है, जो उसका भावार्थ है, जो उसके सेंस हैं, ये सारी चीजें अगर पता हो तो क्वेश्चन भैया कहीं से भी बना दे आयोग, सारा कुछ कवर कर लोगे। यही हम करना सही चाहते हैं, करें है जी। ना। तो जी बढ़िया चीजें लगातार बने रहिए, देखिए मजा आएगा। लिटरेचर एक ऐसी चीज है, इसको पढ़ने में नहीं तो सर, मजा ही आता है। क्वेश्चन स्टैंडर्ड थे सर, अच्छे थे। और हमारे तो 26 में 26 थे सर। अरे वाह, बधाई हो, आज का रिजल्ट तो हमने देखा ही नहीं। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया भाई, अच्छा है परफॉर्मेंस। चलिए तो ये तो रहा आज का टेस्ट। अब अगला हम देखते हैं नोट्स में इनका। तो नोट्स में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इनके वर्क्स। तो एक तो वर्क्स को हम दो तरीके से देख के पढ़ सकते हैं। एक तो इनका वर्क्स से ऐसा क्वेश्चन बनता है जो सिर्फ उसमें हमारी ये पहचान होना जरूरी है कि ये वर्क इनका है कि नहीं है। हाँ जी सर, ऐसे ही बनता है। और दूसरा जो है वर्क से क्वेश्चन उनके अंदर से बनता है। तो जो उनके अंदर से क्वेश्चन बनता है वो उनके मेजर वर्क या फेमस वर्क होते हैं। और जो सरफेस लेवल का क्वेश्चन बनता है तो सरफेस लेवल के क्वेश्चन को भी बनाने के लिए ऐसे वर्क की ईयर पूछ लेगा आपसे, या इनका ये वर्क है कि नहीं है ये पूछ लेगा आपसे, कि जो है नॉर्मल एस्पिरेंट जो सरफेस लेवल पर पढ़ करके आए हैं वो चीजों को समझ नहीं पाए। तो देखते हैं सबसे पहले हम इनका जो पोएम्स 18, 17 आया था उसके अंतर्गत जो है कौन कौन से वर्क आते हैं। तो सिर्फ वर्क और उनका जनरली कमिंग सर, एयर। जनरली सर वो यही पूछता है कि वो ऐसे वर्क को पूछेगा जहां लोग जिसके बारे में अननोन रहते हैं, जनरली जो नहीं जानते हम्म हैं। जो अब ये तो ओ टू नाइटिंगेल, ये ग्रेटेस्ट ओड हर एक कोई पढ़ लेता है। अब कुछ ऐसे हम्म। वर्क हैं वहां से क्वेश्चन वो एग्जामिनर बना देता है, तो वो हमारे लिए टफेस्ट हो जाता है। जी जी जी, वही हम सबसे पहले इसी को हम कवर करेंगे, फिर हम इनके डिटेल में जाएंगे। तो पहला जो वर्क है आता है इसमें पोएम्स 18, 17 के साथ में या उस ईयर में कौन कौन से वर्क्स आते हैं। पहला तो डेडिकेशन आता है जो कि लीहंट को। अच्छा, इसके फीचर ये किसको डेडिकेट है क्या है ये हम पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे आगे।
इनके मेजर वर्क्स में। ये डेडिकेट भी जो है ली हंट को ही है, नहीं चैटर्टन को ये वर्क डेडिकेट है। हाई ए टू ली हंट, उन्हीं को जो है ग्लोरीफाई इसमें किया गया है। आई टू टिप टॉप अपॉन अ लिटिल हिल, ये चूंकि आए इसमें है पोइम्स 1817 में, तो सबका जो ईयर है वो 1817 ही होगा, तो बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम वर्क ही पढ़ते चले जा रहे हैं। आगे है स्पेसिमेन ऑफ एन इंडक्शन टू अ पोइम, कैलिडोर अ फ्रेगमेंट to some ladies on receiving a curious shell and a copy of verses from the same ladies to a Georgiana Augusta। ये वर्क जो है इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है आफ्टरवर्ड मिसेस जॉर्ज कीट्स, ये इनकी एक सिस्टर इन लॉ है आगस्टा जॉर्जियाना, उनको ये वर्क जो है डेडिकेटेड है। इनके उनके कुछ अच्छे टर्म्स मैच करते थे, तो इसलिए भी थोड़ा ये एम्फसाइज कर लीजिएगा वर्क को। टू होप इनका एक वर्क है 1817 में आता है। इमिटेशन ऑफ स्पेंसर जो कि कंसीडर वर्क है इनका। वोमेन व्हेन आई बिहोल्ड दी फ्लिपेंट वैन, ये इनका वर्क है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इन्हीं का वर्क है। लेटर्स की अगर हम बात करें तो इनके 3 फेमस लेटर इसी 1817 में आते हैं। एक तो ये जॉर्ज फेल्टन जो इनके एक फ्रेंड होते हैं उनको लिखते हैं, फेल्टन मैथ्यू, उनको लेटर लिखते हैं, तो कई चीजें उसमें उजागर करते हैं लिटरेचर के विषय में। और दूसरा जो है इनके ब्रदर जॉर्ज को एक लेटर लिखा जाता है जिसमें निगेटिव कैपेबिलिटी को बताते हैं शेक्सपियर के वर्क को लेकर के। चार्ल्स काउडन क्लार्क, ये भी इनके फ्रेंड होते हैं, इनके स्कूल टाइम में इनको जो है लिटरेचर की तरफ मूव करने का काम यही करते हैं, और इनके प्रिंसिपल के लड़के होते हैं, तो इनको एक लेटर लिखते हैं। तो इन 3 लेटर्स में जो है इनके काफी थ्योरीज और काफी एक्सप्रेशन लिटरेचर के लेकर के इसमें आते हैं। इनके सोनेट्स हैं कुछ इनके 1817 के साथ में ही आते हैं इनके। टू माय ब्रदर जॉर्ज, इनका एक सोनेट है। टू हैड आई अ मैंस फेयर फ्रॉम, ये लाइन दे करके पूछ लेगा कि सोनेट है किसका, क्योंकि सोनेट का जब बात आती है तो दिमाग तुरंत हमारा विलियम शेक्सपियर पे जाता है, तो वहां से कंफ्यूजन हो सकता है। हैड आई अ मैंस फेयर फ्रॉम, रिटन ऑन द डे दैट मिस्टर ली हंट लेफ्ट प्रिजन, ये भी इनका वर्क है एक। हाउ मेनी बार्ड्स किल्ड द लैप्स ऑफ टाइम, to a friend who sent me some roses, to G.A.W. Georgiana Augusta, O solitude, if I must with thee dwelt, to my brothers, अभी एक ब्रदर के नाम से और आया। Keen fitful guests are whispering here, to one who has been long in city pent, on first looking into Chapman's Homers, ये पोएम्स में ही आता है, इसी को सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है। ऑन लिविंग सम फ्रेंड्स एट एन अर्ली आवर, एड्रेस टू हेडॉन, हेडॉन एक उस समय के राइटर, ये इन्होंने कई जो है हेडॉन के वर्क से सोर्स लिया है, तो इनको कई वर्क डेडिकेट भी हेडॉन को इन्होंने किया है। एड्रेस टू द सेम, ऑन द ग्रास होपर एंड क्रिकेट, ये एक फेमस जो है वर्क है इनका। टू अ किसको जो भी इसको पढ़े अपने हिसाब से। हैप्पी आइलैंड, ये इनका एक वेल नोन वर्क है, पूछ ले सकता है किसका है। इंडिमियान जो है इसका पूछा जा सकता है, एक तो ये कब आता है और कब लिखा जाता है और कब आता ये है। 17 सर 18 ये 1817 वो मिस प्रिंट हो गया है सर, ये 1817 आया। हाँ। दूसरी चीज ये कि नहीं, कहाँ में प्रिंट हो गया, कौन सा? ये 1917 लिख रहा है ना सर, पोएटिक रोमांस पर। हाँ, ये 1917 गलत लिख गया है, ये 1817 होगा, ये मिसप्रिंट हो गया है। अब इतना तो वही समझ ही जाएंगे आप, 100 साल का घपला नहीं हो सकता है। हाँ? सर प्रीफेस इसका पूछा सकता है कि किसने लिखा, ऑप्शन में अगर दे दे शैली ने लिखा कि कीट ने लिखा कि बायरन ने लिखा है, दिमाग गड़बड़ा सकता है। तो लोग
99% शैली पर जाएंगे सर। हाँ शैली पे जाएंगे, इसलिए जो है लिखा ही नहीं हाँ, है। क्यों खुद प्रीफेस नहीं लिखता, जनरली जो है साथी होता है उनसे लिखवा लेते हैं, तो ये कीट्स ने स्वयं लिखा है, इसलिए इसको हमने मेंशन किया यहाँ पर। ये जो इंडिमियान है ये 4 बुक में जो है ये आता है, 1818 में ही है। लामिया इसाबेला एंड अदर्स जो है साथ में एक साथ पब्लिश होते हैं 1820 में। लामिया 2 पार्ट्स में है। इसाबेला द पॉट ऑफ बैसिल, इसका जो सबटाइटल इंपॉर्टेंट हो सकता है। द ईव ऑफ एसटी एग्नेस, ये सारे ओड हैं इनके, ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं। फैंसी 1820, ये वर्क ठीक ठाक है। पार्ट्स ऑफ पैशन एंड मर्थ, ये भी ध्यान रखिएगा, मर्थ का बातचीत आ जाएगी तो कहीं जॉन मिल्टन के एल एलेग्रो पेंसरेसो से दिमाग न गड़बड़ा जाए। लाइन्स ऑन द मेरीमेट टावेर्न, रॉबिन हुड, एक उस समय के जो है ठीक ठाक व्यक्ति थे, उनको रॉबिन हुड बना दिया इन्होंने। टू अ फ्रेंड, टू आटम, टू आटम, ओड ऑन मेलंकली। हाइपेरियन भी इनका 3 पार्ट में आता है। हाइपेरियन और एक फॉल ऑफ हाइपेरियन आगे भी मिलेगा अभी आप। ये ऐसे वर्क हैं जो पास्थमसली जो है पब्लिश होते हैं, लिखे पहले गए हैं, रिटन अर्लियर, लिखे डेथ के पहले गए लेकिन लोगों के सामने बाद में आ पाए। जैसे टू अ चैटरटन, ये जो है चैटरटन को डेडिकेटेड वर्क है, 1815 में लिखा गया और जबकि बाद में 29 में ये पब्लिश होता है। ओड टू अपोलो, ये भी ठीक ठाक वर्क है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। सोनेट ओ आउ हाउ आई लव, ये भी जो है पहले ही लिखा गया था 16 में। रिटन इन, हालांकि रिटन डेट बहुत कम पूछी जाती है, पब्लिसिटी पूछी जाती है ज्यादातर, लेकिन दिमाग में बनाए रखना है हमको, पता नहीं क्या पूछ ले क्वेश्चन टफ बनाने के लिए। रिटन इन डिस्गस्ट ऑफ वल्गर्स सुपरस्टिशंस, ये भी बाद में आया, 16 में लिखा गया था। सारे के सारे वर्क यहाँ पर इनके मृत्यु के बाद में आते हैं। ऑन द सी, ये वर्क ठीक ठाक है। अच्छा, बाय द सी किसका सब टाइटल है? बाय द सी जो है किस वर्क का सब टाइटल है? ढूंढ के बताइएगा, कमेंट करिएगा, कल पूछेंगे। इन द डियरर नाइटेड दिसंबर, ये भी ठीक ठाक वर्क है इनका, 1817 में आता है। व्हेन आई हैव फेयर्स दैट आई में सीज टू बी, 1818 में आता है। मॉडर्न लव, ठीक ठाक वर्क है इनका, 1818 में आता है। टू अ कैट, ये थोड़ा यूनिक है इनका वर्क। लाइन ऑन सीइंग अ लॉक ऑफ मिल्टन्स हेयर, ये वर्क मिल्टन का नाम इसमें आया इसलिए ठीक ठाक इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऑन स्टिंग डाउन रेड रीड किंग लेयर वंस अगेन, 1818 में आता है, किंग लेयर की वजह से इंपॉर्टेंट हो सकता है। द ह्यूमन सीजन, टू सोनेट्स ऑन फेम, टू अ नील, ये नील नदी पर डिपेंड बेस्ड वर्क है इनका, इसलिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इपिसल टू जॉन हैमिल्टन, 1818 में है। फ्रेगमेंट ऑफ एन ओ टू माया, मेग मेरिल्स स्टाफा, ये भी यूनिक वर्क है इनका। रिटन अपॉन द टॉप ऑफ बेन नेविस, ट्रांसलेशन ऑफ द सोनेट ऑफ रॉन्सार्ड, टू अ जॉर्ज कीट इन अमेरिका, ये ठीक ठाक वर्क है वर्क इनका। ला बेल्डेम संस्मर्सी तो फेमस है ही है। शेयरिंग ईव एप्पल्स, ड्रॉट ऑफ सनशाइन, टू अ लेडी सीन फॉर अ फ्यू मोमेंट्स एट वैक्सेल्स। ओ टू फेनी, चूंकि ये इनकी बिलबेट पर डिपेंड है, उन्हीं को डेडिकेटेड है, सब कुछ रोते धोते हैं क्या क्या हुआ इनके साथ। आई हैड अ डब, ठीक ठाक वर्क है इनका, ध्यान में रखना चाहिए। ओड ऑन आइडोलसेंस, ये तो ग्रेट ओड्स में से है। सोनेट, व्हाई डिड आई लाफ टू नाइट, इतना खाली पूछा सकता है। अ ड्रीम, आफ्टर रीडिंग दांतेस एपिसोड्स ऑफ पाउलोस एंड फ्रांसेका, 19 में आता है। द फॉल ऑफ हाइपेरियन 1819, ये अलग वर्क है टाइप में, एक टाइटल के नाम से आता है लेकिन ये स्टोरी सब वही है इसमें। आई स्लीप अ लिटिल वाइल, ऑन डेथ, ये भी ठीक ठाक वर्क है। वोमेन एक वर्क है, वोमेन वाइन एंड स्नफ, टू बायरन, इनके फ्रेंड को डेडिकेट है। द पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
द पॉइंट। अ सॉन्ग ऑफ अपोजिट डेट अननोन इसकी, ये सारी जो है डेट्स इनकी अननोन है कि कब ये लिखा गया, लेकिन आया 29 में बाद में। द डेट्स ऑफ मेनी वर्क्स आर अननोन आर डाउटेड, मोस्टली रिटेन एंड पब्लिश्ड डेट आर डिफरेंट। तो ये ऐसी चीजें मिलती हैं, लेकिन उनके जो है कहीं 17 में लिखा गया कि 19 में, तो डिफरेंट डेट भी मिल जाती हैं इनकी अलग अलग, और कुछ की तो मिलती नहीं है। ऑथेंटिक सोर्स में भी इनकी डेट्स जो है कई डिफर मिलेंगी आपको। इनके मेजर वर्क की डेट्स जो है आपको डिफर मिलेंगी। अल्बर्ट और लांग अगर पढ़ेंगे तो उसमें भी डेट्स आपको अलग अलग मिल जाएंगी, मार्केट की बुक में अलग अलग है ही है। जहां पर डेट्स डिफर है हम वहां पर आपको स्वतंत्रता देते हैं, हमारे द्वारा दिए गए डाटा के आधार पर। जहां पर ये डाउटेड है तो मैं बता दे रहा हूं कि 2-3 जगहों पर अलग अलग मिल रही है। जो भी आपके पास सोर्सेस हैं मैच करके तभी आगे जा करके उस पर टिक लगाइएगा। अगर उनका कोई ऑथेंटिक सोर्स हमें मिलता है जो डिफरेंट डेट्स हैं, तो मैं जरूर आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। कुछ पॉइंट्स ऐसे हर राइटर को लेकर के जो डिबेटेबल हैं और जिनको आयोग ने भी कई बार जो है आंसर बदले हैं उनके, तो उन सब चीजों पर जो है कोई हम फिक्स्ड अपना पॉइंट नहीं बताते हैं, ताकि हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से कोई एक भी क्वेश्चन का कोई नुकसान आप में से किसी का हो। तो आज इतना ही हम रखेंगे। ये सारे के सारे वर्क्स जो है आपको मिल जा रहे हैं अभी, उनको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, और इन्हीं पे कल क्वेश्चन जो है हम 25 क्वेश्चन एमसीक्यू सिर्फ वर्क पर। ये जो है जितना हम लोगों ने आज पढ़ा है, ये 1 नंबर का काम जरूर है। 1 नंबर का सवाल यहाँ से आपको पूछा जा सकता है कि कौन सा वर्क इनका है, कौन सा वर्क नहीं है, या वर्क और उनसे रिलेटेड जो ईयर है, पब्लिशिंग ईयर, यहाँ से एक क्वेश्चन तो बनने की मोस्ट प्रोबेबिलिटी है। तो आज से कल तक के आप जो है एक क्वेश्चन के इस पूरे टॉपिक पर मालिक बन जाएंगे। तो आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं। कोई किसी टॉपिक पर या किसी पॉइंट पर कंफ्यूजन हो तो बता सकते हैं। थैंक यू जी। सर।